فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم معزز سامعین، فاضلات و عالمات، قابل قدر و قابل احترام، یہ تیسرے تربیت الفاضلات کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جیسے کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے محاضرات فرقہ ضالہ، ازالہ شبہات، مواد، طریقہ کار، افادیت، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات اس موضوع سے متعلق عقیدے کی اہمیت ہر انسان کے اور ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ عقیدے کے متاثر ہونے کو شریعت کبھی گوارا نہیں کرتی ہے، بلکہ کجی پیدا ہو جائے، رخ بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، عمل کی قبولیت رک جاتی ہے، داخلہ جنت کا ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ بہت سی مرتبہ سنا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور ان کے ریت پر لٹائے جانے، کوڑوں کے ان پر برسائے جانے، یہ سب کچھ اگر ان پر ہو رہا تھا اور وہ حضرات ان سب کو اگر برداشت کر رہے تھے، وہ عقیدے کی سلامتی تھی اور ایمان کے تحفظ کی فکر تھی۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو، قرآن کے مسئلے میں کیسے کوڑے ان پر برسائے گئے۔ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی پر برسا دیے جاتے، ہاتھی بدک جاتا، لیکن ایک مسئلہ پیش نظر تھا جس کا تحفظ ذہن پر غالب تھا، کوڑے برداشت کیے گئے، لیکن اس مسئلے کے سلسلے میں ذرا برابر بھی انحراف کو قبول نہیں کیا گیا۔ دشمن سے جب تک واقفیت نہیں ہوتی ہے، مقابلے میں آنے والے اور ایمان کو سلب کرنے والے فکروں کے سلسلے میں جب تک علم نہیں ہوتا ہے، مقابلہ ہو نہیں سکتا، تعاقب ہو نہیں سکتا، تحفظ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے فرقوں کا جاننا، ان کی تاریخ کا جاننا اور ان سے متعلق کتب کا جاننا، اور وہ کیسے فرقے ہیں جن سے اشتراک کن پہلوؤں میں ہو سکتا ہے، افتراق کے کون سے پہلو ہے، اجتماعیت کے نام پر مسلک کو چھوڑنا، مذہب کو چھوڑنا، کیا شریعت اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ یا اتحاد کے نام پر وندے ماترم پڑھنا شروع کر دینا، یا مذہب ملک کی محبت میں کچھ ایسے گیت اور کچھ ایسے پوئمز پڑھ دینا جس سے عقیدہ متاثر ہوتا ہے، کیا شریعت اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ اور اگر اختلاف ہو تو کس حد میں ہو، اختلاف ہو تو کن حدود تک ہو سکتا ہے؟ اختلاف کی بنیاد پر قومی مسائل کو نظر انداز کر دینا، فروعی مسائل کی وجہ سے سیاسی حساس ضرورت والے مسائل کو پس پش ڈال دینا، کیا شریعت اس کی اجازت دے گی؟ یہ سارے مسائل ہیں جو محاضرے کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر احادیث پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ احادیث دو طرح کے فرقوں کی طرف نشاندہی اور رہبری کرتی ہے۔ ایک فتنے اور فرقے وہ ہیں جو ایمان کو سلب کرنے والے ہیں، جیسے کتاب الفتن کی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں، اور کافر وہ بن جائے گا۔
और ऐसे ही शाम वो ईमान की हालत में करेगा, सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, थोड़ी सी दौलत और थोड़ी सी चीजों के बदले में वो ईमान को बेच देगा। तो ये हदीस बताती है कि एक जमाना आएगा जिसमें फितने उबलेंगे, जो फितने ईमान को खत्म करने और ईमान को दिलों से छीनने के लिए होंगे। और दूसरी हदीस जिसको उमूमन सुनाया भी जाता है, जहां पर फिरकों का तस्करा किया जाता है कि यहूद कितने फिरकों में बटे, नसारा कितने फिरकों में बटे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कितने फिरकों में बटेगी। जैसे कि हदीस के अल्फाज है, सतफ्तरिकु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फिरका इला सलासतिन व सबईन, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनमें का हर फितना हक पर नहीं होगा, बल्कि दुखूले अव्वली के लिए, जन्नत में सबसे पहले दाखिले के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबा के पूछने पर फरमाया कि वो फिरका और वो जमाअत जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी जिसकी सिफत ये होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिनकी जिंदगियों में हदीस भी होगी, जिनकी जिंदगियों में सहाबा पर तान नहीं, तनकीद नहीं, तंज नहीं, सहाबा से जो शरीयत अल्लाह के नबी के हवाले से पहुंची है उन सब को कबूल करने वाले वो लोग होंगे। तो हदीसें दो तरह के फिरकों को बताती है, हमें उन दोनों फिरकों से मुतालिक, एक ईमान को सल्ब करने वाले हैं और एक अकीदे को मुतासिर करने वाले हैं, दोनों से तहफ्फुज जरूरी है। ईमान का सल्ब हो जाना आदमी के नाकाम होने की दलील है, और अहलुस सुन्ना वल जमाआ में शामिल न होना यह आदमी के लिए अव्वले वहले में जन्नत में दाखिले से माने बन जाता है। तो फिरक़े नाजिया में अपनी आप की शिरकत, उसको यकीनी बनाना, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुआशरे में पाए जाने वाले फिरकों का, जमातों का अगर हम तारुफ जानेंगे और उनके दरमियान क्या वाकई वो जिंदगियां हैं, वो सीरत है, वो हदीसें हैं और सहाबा की वो जिंदगियां हैं जिसको हदीस कहती है, वो है, उस जमात के साथ मुंसलिक होंगे, वरना उनको छोड़ दिया जाएगा। पड़ोस मुल्क के आलिम दीन हैं मुफ्ती मुबीन साहब, काफी रिसाले, किताबचे हसास मौज़ूआत पर मुख्तसर जामे अंदाज में लिखते हैं। वो इस हदीस की रोशनी में जिसमें फिरकों का तस्करा किया गया, मुख्तलिफ बातों को उन्होंने जिक्र किया है, खुलासे के तौर पर यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। सबसे पहली बात वो जिक्र करते हैं कि उम्मत में 73 फिरके हदीस की पेशीन गोई के नतीजे में जरूर होंगे, उसमें तखल्लुफ हो नहीं सकता है। दूसरी बात उन्होंने जिक्र की, बाज लोग ये मुआशरे में बात चलाते हैं कि तमाम फिरके गलत है, हमें इस्लाम पर रहना है, न दियोबंदी बनना है, न बरेलवी बनना है, न किसी और जमात से अपने आप को मुंसलिक करना है। ये उनका नजरिया और उनकी फिक्र गलत है। इस्लाम के साये में फिरकों का वजूद में आना और उन फिरकों में से एक का नाजी होना, यह हदीस की पेशीन गोई के मुताबिक है। सिर्फ इस्लाम और इन फिरकों से अलायदगी के साथ हो नहीं सकता है। हदीस कहती है फिरके होंगे तो जरूर होंगे, हदीस कहती है एक फिरका नाजी होगा तो जरूर फिरका नाजी होगा। उनमें शामिल होने और उसके साथ जुड़ने की फिक्र करनी चाहिए। तीसरी बात जो हजरत फरमाते हैं कि ऐसे फितनों के जमाने में हक जमात से वाबस्तगी, उनसे जुड़ना अपने अकायद के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। और उसके आगे फरमाते हैं बातिल अकायद से बचे बगैर हम उस फिरके में शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इस हदीस की रोशनी में बाज लोग ये बात चलाना शुरू कर देते हैं, देखिए इस्लाम फिरका वारियत की तालीम देता है, खुद हदीस कहती है कि फिरके होंगे 73 होंगे, तो इस्लाम फिरका वारियत की तालीम देता है। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम और फिरका वारियत इन जैसे शुबहात का इजाला करती है। इस्लाम फिरका वारियत की तालीम नहीं देता है, बल्कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए और बातिल फिक्रों से इस्लाम आगाही और वाकिफियत कराता है। उसके बाद
हजरत फरमाते हैं कि जितने फिरके होंगे आखिरी जमाने में, जिनकी तादाद 73 बताई गई है, सब इस्लाम में तो होंगे, लेकिन फिरके नाजिया अव्वले वहले में ये वो फिरका होगा जिसे अहलुस सुन्ना वल जमाआ कहा जाएगा। मुफ्ती मुबीन साहब ने भी और मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने भी फिरके नाजिया किसे कहा जाता है, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत की रोशनी में यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, इस आयत की रोशनी में जिक्र किया है कि किनके चेहरे सियाह होंगे, किनके चेहरे निखरे हुए होंगे। तो हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं वो लोग जो सहाबा अहलुस सुन्ना वल जमाआ में से होंगे उनके चेहरे खिले हुए सफेद होंगे, और जो बातिल फिरकों के साथ मुंसलिक होंगे उनके चेहरे सियाह होंगे। उसके बाद फिरकों का वजूद कब से हुआ, किस जमाने से हुआ, तारीख का जानना भी जरूरी है। याद रखना चाहिए, उलमा फरमाते हैं कि फिरकों की असास बदला नहीं करती है, नाम बदल जाता है। फिरकों की बुनियाद बदला नहीं करती है, उन्वान बदल दिया जाता है। जिसको दूसरे उलमा फरमाते हैं नई बोतल में पुरानी शराब दी जा रही है। तो फिरकों की बुनियाद के जान लेने से फिरकों में शनाख्त और फिरकों से वाकिफियत इसमें सहूलत होती है। अगर आप देखेंगे सहाबा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उसके बाद का ज़माना, तो हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना वो था जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपके हाथ पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि आपके मरने के बाद या कि मैं आपके साथ नबूवत में शरीक होना चाहता हूं। उस मौके पर अल्लाह के नबी के हाथ में खजूर की शाख थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इस शाख में भी मेरे साथ शरीक हो नहीं सकते, तुम नबूवत में मेरे साथ कैसे शरीक हो सकते हो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। उस फितने का अभी कोई ताकुब नहीं हुआ। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जमाना आया। उस जमाने में एक फितना उबला, चल नहीं सका, एक फितना साबिका का था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक फितना उबरा, चल नहीं सका, एक फितना साबिका का था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उसका ताकुब किया। एक तो मुनकिरीन ज़कात का फितना, वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी के लिए कुरान करीम कहता था खुद मिन अम्वालिहिम, कि आप उनके मालों से ज़कात लीजिए। अल्लाह के नबी बाकी नहीं रहे, लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने इजहार किया कि हम उनसे क़िताल करेंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इब्तिदा में तरद्दुद था, तो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा यह तफसीलन वाक़या उनके फितनों के सिलसिले में ताक़ुब, हसासियत और कितना वो लोग बेदार रहा करते थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम जाहिलियत में तो बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद बुज़दिली तुम्हारे अंदर महसूस होती है, दिल मुनशरे हुआ। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का मुकाबले के लिए दोबारा वो तैयार हुए, तो जमात भेजी गई, मुकाबला हुआ, मुनकिरीन ज़कात के फितने का ताक़ुब और उसका खातिमा हो गया। और उसके बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने एक जमाअत को मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के ताक़ुब के लिए भेजा। आप तारीख पढ़िए, सहाबा की जो शहादतें हैं वो 259 है, 256 है, जितनी भी शहादतें हुई, लेकिन ये एक वाक़या है जहां पर ताक़ुब के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा को भेजा जाता है। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु सरबरा बनाए जाते हैं, मुकाबला होता है, तकरीबन 700 कुर्राए सहाबा शहीद हो जाते हैं। पूरी शहीद होने वालों की तादाद 1200 होती है, यानी वो सहाबा जो अब तक शहीद हुए उनकी तादाद 259 है, और खत्म नबूवत के मसले के लिए जो शहादतें होती है वो 1200 है। और उसके बाद ये तय होता है कि खत्म नबूवत का मसला इजमाई है, उसके बाद कुरान करीम के जमा करने के वगैरह के मसाइल शुरू होते हैं। तो कितनी हसासियत थी एक फितने के ताक़ुब और उसके इजाले, उसकी जड़ों के उखड़ने के लिए सहाबा के दरमियान, इसको भी देखने की जरूरत है। उसके बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जमाना हुआ, काफी हद तक इस्लाम फैला। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जमाना हुआ, मिजाज में थोड़ी सी
ज्यादा नरमी नहीं थी, जिसकी वजह से किसी फितने को निकलने या उबलने का मौका मिल नहीं सका। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के जमाने के बाद जो तकरीबन 10 साल से जायद रही, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु का जमाना शुरू होता है। ये वो जमाना है क्योंकि हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के जमाने मिजाज में थोड़ी सी नरमी थी, अब फितने उबलने शुरू होते हैं। चुनाचे खवारिज का फिरका, रवाफिज है, कदरिया है, जबरिया है, मुअतजिला है, मुशब्बिहा है, मुर्जिया है, जहमिया है, ये सब फिरके उसी जमाने में थोड़ी सी तब्दीली के साथ, जमाने के थोड़े से फर्क के साथ वजूद में आते रहे। हमने इब्तिदा में कहा था कि फिरके उनकी असास और बुनियाद एक ही हुआ करती है, जमाने के बदलने से बुनियादें बदला नहीं करती, नाम और उन्वान बदल जाता है। इसी को हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 मजहब यानी कदरिया, मुर्जिया, खवारिज और रवाफिज, यही 4 असल है। इनके दरमियान थोड़ी सी तब्दीली से वो फिरके जिसकी निशानदेही हदीस में की गई है वो वजूद में आ जाते हैं। बुनियाद ये 4 हैं, अकीदों में थोड़ी सी तब्दीली के बाद वो वजूद में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, उलमाए दियोबंद, इनके पास उन फितनों से ताक़ुब और उन फितनों के खात्मे के लिए ज़मीर की बेदारी और फितनों के खात्मे के लिए नींदों का छोड़ना किस कदर था, चंद वाक़यात आपको सुनाए जाएंगे। उन लोगों ने उस जमाने में काम किया जिस जमाने में कोई वसाइल नहीं थे, और उस जमाने में इल्म कलाम जदीद को मुरत्तब किया जा रहा है जिस जमाने में जदीद ज़राए अबलाग या एक प्रिंट आउट वगैरह का कोई मुनज़्ज़म मुरत्तब हर जगह पर मौजूद निज़ाम नहीं था। और उस जमाने में फितनों का ताक़ुब किया जा रहा है जिस जमाने में बीमारियां हैं, तसलसल के साथ बीमारियां हैं, तबीयत की नासाजियां हैं, लेकिन उसके बावजूद ताक़ुब के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों का जमाना था, ईसाइयत का फितना पनप रहा था, आगे बढ़ रहा था, इतना आगे बढ़ रहा था कि ईसाई पादरियों को यूरोप से बुलाया जाता था, यहाँ पर क़ियाम उनको फराम किया जाता था। उन्हीं पादरियों में से एक पादरी था जिसका नाम मिस्टर फंडर था, जो अंग्रेजी का भी जानने वाला था, अरबी का भी जानने वाला था, फारसी का भी जानने वाला था, और उस फितने और उस आदमी के लिए मुआवनत के लिए कई पादरियों को हवाले कर दिया। उसने किताब लिखी, कई किताबें लिखी, मसलन मिजालुल हक उसने लिखी, तरीकुल हयात उसने लिखी, हल्लुल इश्काल उसने लिखी, तुलुए आफ्ताब व सदाकत उसने लिखी। ये सब किताबें इस्लाम को ज़ेर करने के लिए वो लिख रहा था। किताबें ही नहीं लिखता था, बल्कि जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और आपकी आमद और रफ्त रहा करती थी। वहां पर उन सीढ़ियों पर वो खड़े होकर कहता था, है कोई मुसलमानों में जिंदा दिल जो मेरे सवालों का जवाब दे दे। और यहाँ तक ईसाइयों ने सोच लिया था कि जामे मस्जिद को कलीसा में बदल दिया जाएगा। उसके बाद मौलाना असीर अदरवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अभी हिंदुस्तान में ऐसे उलमा मौजूद थे जो फौलादी अज़्म व इरादे के मालिक थे। वो इस्लाम पर शदीद हमलों को देखकर जब्त न कर सके। ऐसे ही लोगों में मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी थे। उसके बाद मुनाजरा तय होता है किनके दरमियान? मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी के दरमियान और मिस्टर पी फंडर के दरमियान मुनाजरा होता है। मुनाजरे में पहले यह तय किया जाता है कि मुनाजरा एक मर्तबा नहीं होगा, कई मर्तबा होगा। मुकाबला एक मर्तबा नहीं होगा, कई मर्तबा होगा। दलाइल जमा किए जाते हैं, उनका रद्द किया जाता है। शिकस्त मुसलमानों को होती है, मुसलमानों को फतह होती है, ईसाइयों को शिकस्त होती है। मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी फरमाते हैं कि मैं एक इलाके में था, उस इलाके में मिस्टर फंडर भी रहा करता था। मैं उसके पास जाता था और कहता था, जब पहला मुनाजरा हुआ तो उस मौके पर यह तय हुआ कि मुकाबला और मुनाजरा एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा होगा, आओ हम तुम्हें मुनाजरे की दावत देते हैं, मुकाबला होगा। वो टालता रहा, कभी वो तैयार नहीं हुआ। मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी ये वो शख्सियत है जब वो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा गए, वहां से उनको बुलाया गया दूसरे मुल्क में। वहां पर इशारों पर, वहां के बादशाह के इशारों पर उन्होंने ईसाइयों के जवाबों को तरतीब दी,
किताब लिखी जो बाद में शाये हुई इजहार हक के नाम से, जिसका चर्चा इतना था। उस जमाने का अखबार था टाइम्स ऑफ लंदन, उसने किताब छापी, जब तक लोग इजहार हक को पढ़ते रहेंगे उस वक्त तक ईसाईयत दुनिया में पनप नहीं सकती है। उसी का तर्जमा है बाइबल से कुरान तक। ये तो एक फितना था जिसके मुकाबले के लिए सिर्फ मैदान में रहमतुल्लाह किरानवी नहीं बल्कि दसियों उलमा थे। आप देखिए आर्या समाज को, आप देखिए शाहजहांपुर के मुबाहसों को, आप देखिए पंडित दयानंद सरस्वती के साथ हजरत नानोतवी के मुकाबलों को, कैसी गहराई, कैसी अकली इस्तेदलालात, कैसे उन्होंने सामने वालों को जेर किया, हक को गालिब किया। सिर्फ उन तहरीरात को भी पढ़ लिया जाए, इस जमाने के फितनों का ताक़ुब और इस जमाने में उभरने वाले सवालात के जवाबात देने के लिए काफी है। कोई नया इल्म कलाम इस जमाने में मुदव्वन करने की जरूरत नहीं है, आब हयात को समझ लेने की जरूरत है, आब हयात को समझ लेने की जरूरत है। इसी के साथ साथ आप कादियानियत के खिलाफ मुकाबला करने वालों को देखिए। हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तबीयत नासाज है, बवासीर के मरीज है, भावलपुर की अदालत में आपको बुलाया जाता है। उसी बीमारी के जमाने में जाते भी हैं, मुकाबला करते भी हैं, 8 घंटे तक दलाइल भी देते हैं और कादियानियत को बातिल करार भी देते हैं। वो अपने शागिर्दों से कहा करते थे, जब से मुझे इत्तला मिली है कादियानियत के वजूद में आने की, तबीयत बेकरार है, दर्स में तज़किरा किया करते थे, तुम्हें इन फिरकों की तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है। कैसे बेकरार थे मौलाना मुर्तजा हसन साहब चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली मोंगीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्तजा हसन साहब चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुनाजिरे के मैदान में होते, मुतकल्लिम बने रहते। मौलाना मोहम्मद अली मोंगीरी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में पड़े रहते, दुआ गो रहते, ए अल्लाह फतह नसीब फरमा दीजिए। यूसुफ साहब बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह निकलने लगे, बगल में कोई चीज थी, साथियों ने पूछा कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया कादियानियत के ताक़ुब के लिए जाऊंगा, जीत होगी वापस आऊंगा, वरना कफन साथ लेकर जा रहा हूं, जनाजा ही वापस आएगा। ये हमारे अकाबिर का ताक़ुब के सिलसिले में हमारे अकाबिर की फिक्र थी, हसासियत थी, कुड़न थी, बेचैनी और बेकरारी थी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने थाना भवन से आगरा के इलाके में जब इर्तिदाद की इत्तला मिली, काफिलों को रवाना किया इर्तिदाद के थामने के लिए। उसके बाद मौजूदा जमाने के जो मुख्तलिफ किस्म के फिरके हैं, मवाद तो बहुत सारा मिल जाता है, वाकिफियत बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह कोशिश की गई है कि सरगर्म फितने, चाहे वो फिक्री हो, चाहे वो इर्तिदादी हो, चाहे उनका काम मैदानी हो, उनका मुख्तसर सा तारुफ करा दिया जाए, उनकी मेहनत और उनकी सरगर्मियों का कुछ तज़किरा कर दिया जाए और स्क्रीन पर उनसे मुतालिक मवाद और किताबें आपको बता दी जाए ताकि मुताले में सहूलत हो, क्योंकि वाकिफियत के बगैर मुकाबला हो नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले इल्हाद का फितना, आप जानते हैं खुदा के न होने पर, खालिक़े कायनात के न होने पर जिस फिरके की बुनियाद है, जिसके पास खुदा का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसके पास खुदा के वजूद का कोई तसव्वुर नहीं है, जिनका कहना यह है कि बंदर से इंसान बना है, जिनका कहना यह है कायनात कोई चलाने वाला नहीं है, लॉस ऑफ नेचर है जो कायनात के निजाम को चला रहे हैं, जिनका कहना यह है कायनात किसी ने बनाई नहीं है, धमाके से यह बन चुकी है, इनके ये अकायद है। हैरत की बात यह है कि इस बेमजहब फिरके की अगर आप तादाद का अंदाजा लगाएंगे, विकिपीडिया वगैरह पर इनकी तादाद के सिलसिले में आप सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में इस बेमजहब तबका तकरीबन 7% पाया जाता है, जिनका काम ही यह है खुदा का इनकार किया जाए। और कॉलेजेस का तबका, यूनिवर्सिटीज का तबका, एक मरतबा IAS IPS की कोचिंग करने वाले तलबा के दरमियान मुज़ाकिरा किया गया, गुफ्तगू इल्हाद के मौजू पर हुई, खत्म पर उन्होंने पूछा डार्विनिज्म क्यों गलत है, यानी यह तस्वुर क्यों गलत है कि बंदर से इंसान बना है। उन्होंने पूछा लॉस ऑफ नेचर क्यों गलत है, हम इसको तस्लीम क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कॉलेजों का तबका, यूनिवर्सिटीज का तबका इतना जहन उनका मुतासिर हो चुका है कि वो सवाल करने पर तैयार है। इसीलिए इस मौजू से मुतालिक वाकिफियत जरूरी है ताकि जदीद तबका, असरी तबका, जिनके दरमियान ये मेहनतें हो रही है, उनके जहनों से इन सवालात को, शुबहात को उनका इजाला किया जा सके।
तो इससे मुतालिक मुख्तलिफ किताबें स्क्रीन पर जिक्र कर दी गई। असासियात इस्लाम है जो मौलाना हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की है। किताब का मुख्तसर तारुफ भी पेश किया जा सकता था, लेकिन फ़िरक़े भी कई है, उनसे मुतालिक किताबें भी कई हैं, इसीलिए सिर्फ नाम जिक्र कर दिया जा रहा है। मौलाना वहीदुद्दीन खान मरहूम की हम उनके नजरियात को पूरे कबूल नहीं करेंगे, हम उनसे 100% मुत्तफिक नहीं है, लेकिन उनकी ये किताब इस्तिदलाल में खुदा के वजूद पर, तरदीद में साइंसी नजरियात पर बेमिसाल है। जरूर देखा जा सकता है एक एक मिसाल को लेकर, एक एक मुशाहदे को लेकर, एक एक साइंस की तहकीक को लेकर कैसे उन्होंने पाए जाने वाले नजरियात की तरदीद की है। इस पहलू से सिर्फ इस किताब को जिक्र किया जा रहा है, 100% उनके नजरिया से इत्तेफाक नहीं है। इसी तरीके से शाहराए इल्म अक्कल कुआ से एक रिसाला निकलता है, अभी वो जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने 5 महीने का रिसाला निकला था। उसमें इल्हाद के मौजू पर काफी तफसीली गुफ्तगू की गई है, इल्हाद की किस्में की गई है, बहुत मुफस्सल उसमें गुफ्तगू आ चुकी है, उसको भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से अल वहयुल मुहम्मदी को भी देखा जा सकता है, इल्हाद से इस्लाम तक हाफिज जमशेद बिन जुनैद साहब की, और इसी तरीके से अल बराहीन फी दफ़ई शुबहातिल मुल्हिदीन। इन किताबों को अगर मुकाबला करना है, इल्हाद से फिक्र को मजबूत करना है, सामने वाले की फिक्र में जलजले को पैदा करना है, तो इन किताबों को देखा जा सकता है। दूसरा अहम मौजू फिक्री जंग है। अब तक जो जंगें लड़ी जाती थी, अब तक नहीं बल्कि हर जमाने में फिक्री जंग पाई जाती है। हम जानते हैं जिस्मानी जंग को, हम जानते हैं मैदानी मुकाबले को कि एक दुश्मन उतर जाए, मुकाबला हो जाए, हथियार इस्तेमाल किया जाए, कौमों को तहस नहस कर दिया जाए, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ये जंग उतनी नुकसानदेह नहीं है, ये आपकी फिक्र पर गालिब नहीं होगी, तहजीब पर गालिब नहीं होगी, सकाफत पर गालिब नहीं होगी, आपके नजरियात को बदला नहीं जाएगा। लेकिन दुनिया में एक दूसरी जंग लड़ी जाती है जिसे फिक्री जंग कहा जाता है। उसके असरात जिस्मानी जंग, मैदानी जंग के मुकाबले में बहुत खतरनाक है। आदमी की तहजीब बदल जाती है, अंदाजा नहीं होता है, सकाफत बदल जाती है, अंदाजा नहीं होता है, फिक्री इन्हिराफ पैदा हो जाता है, अंदाजा नहीं होता है। जब अंदाजा नहीं होता तो गुनाह की तौबा की तौफीक या इजाले की फिक्र भी नहीं हुआ करती है। इसीलिए फिक्री जंग ये इस जमाने का अहम मौजू है। अरबी में भी किताबें लिखी गई, उर्दू में भी किताबें लिखी गई। अगर फिक्री जंग को देखना चाहे कितने मौजूआत में वो तकसीम है, तो उलमा फरमाते हैं कि फिक्री जंग का सबसे पहला मौजू इस्तिशराक है। इस्तिशराक वो लोग हैं जो दीन इस्लाम का मुताला करते हैं, कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, कोई नेक जज्बा नहीं होता, कोई नेक नीयत नहीं होती, कीड़े निकालने का इरादा होता है, एतराज पैदा करना होता है, इस्लाम पर शुबहात को वजूद बख्शना होता है। बहुत बड़े पैमाने पर उनका काम किया जा रहा है, जिसको ओरिएंटलिज्म भी कहा जाता है। मैं मिसाल के तौर पर उनके फिक्रों की, उनके काम की वसाअत को बयान करता हूं। चुनाचे देखिए आप, इनका जो एजेंडा है, उन्होंने अब तक इस मैदान में खातिर का कामयाबियां हासिल की है, जिसका वाज़े सबूत दायरे मुआरिफे इस्लामिया, दायरे मुआरिफे इस्लामिया, ये इनकी यहाँ पर आप इनके मालूमात को हासिल करते हैं। ये अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मनी जुबान में शाये हो चुका है, जिसमें 400 से जायद मुस्तशरिकीन मुस्तकिल मेहनत करते हैं, जो 3000 से जायद मवाद, 10,000 से जायद सफ़हात, 300 से जायद इस्लाम और कुरान और हदीस पर एतराज़ात और मुख्तलिफ शुबहात को इन्होंने जमा किया है। तो फिक्री जंग का सबसे पहले मौजू इस्तिशराक है, जिनका काम इस्लाम पर एतराज़ात को पैदा करना है। दूसरा मौजू इस्तिमार है। इसका मतलब ये है कि अहले मगरिब का जो इक्तिसादी निज़ाम है, अस्करी निज़ाम है, वो पूरे आलम इस्लाम पर वो मुसल्लत करना चाहते हैं। आबादियों को, इस्लामी आबादियों को, मुसलमान मुल्कों की आबादियों को फिक्री तौर पर अपने मातहत करना चाहते हैं। गुज़िश्ता कई सदियों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा इस्लामी ममालिक की कॉलोनियों में हम देख रहे हैं। मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बादशाहत है, उसके बावजूद क्या तब्दीलियां पाई जा रही है। तीसरा मौजू फिक्री जंग का आलमगीरियत है।
जिसे ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में उसकी एक मिसाल मोटी यूं दी जाती है कि एक आदमी फटा पैंट पहनता है या नामुनासिब किस्म की टी शर्ट पहनता है, उसे ट्रेंड के तौर पर इतना चला दिया जाता है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर देती है और अपनाना शुरू कर देती है। यानी हिस्स इतनी खत्म हो जाती है, शऊर इतना मर जाता है कि ये एहसास भी नहीं होता फटे कपड़े पहने जा रहे हैं, फटे कपड़े पहने जा रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं हर एतबार से। चौथा मौजू आलमी फिक्री जंग का अर्रिद्दत व तंसीर है, जिसका मतलब यह है कि मुसलमानों को अपने बातिल दीन की दावत देना, उन्हें मुर्तद कर देना, इसकी भी कोशिशें हो रही है। इससे मुताल्लिक मवाद अगर देखना चाहते हैं तो मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताब है जो यहाँ पर इससे पहले आवेजा कर दी गई थी। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम, मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब की किताब है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। इसके आगे का जो मौजू है वो इस्लाम पर शुबहात और एतराजात। याद रखना चाहिए जवाब वजनी नहीं होता, मुताला कम होता है। जवाब वजनी नहीं होता, मुताला बासी होता है। हमारे अकाबिर ने होने वाले हर सवाल का जवाब दिया, हर एतराज का जवाब दिया, मुनासिब जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया, नाकाबिले तरतीब जवाब दिया। इस्तिशराक की जो मेहनत है आप उसका इजाला कैसे कर सकते हैं? पहले सवाल जो होता था वो अलमा से होता था, खास मौकों पर होता था, खास चीजों से मुतालिक होता था। अब सवाल चबूतरों पर होता है, मीडिया के जरिए होता है, हर बच्चा जानता है और हर नौजवान जानता है, हर आदमी जानता है सवाल क्या हो रहा है। अगर सवालात महदूद थे, इजाला महदूद अंदाज में किया जाता था, कोई मसला नहीं था। जब सवाल हर घर पहुंच चुका है, हर फर्द तक पहुंच चुका है, अगर वाकिफियत नहीं करवाई जाएगी उन सवालात के जवाबात के सिलसिले में तो ताक़ुब कैसे होगा? फितनों के नतीजे में, सवालात के नतीजे में तशकीक का मिजाज पैदा हो जाएगा। हजरत मौलाना शाह जमाल रहमान साहब फरमाते हैं इस जमाने में इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो शहवात के जरिए, शुबहात के जरिए, शहवतों के पूरा करने के इतनी राहें, इतने रास्ते हमवार कर दिए गए जिसका कोई अंदाजा नहीं है। शुबहात इतने पैदा कर दिए गए, हर दूसरा आदमी हलाले से मुतालिक सवाल करता है, हर दूसरा आदमी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के निकाह की उम्र से मुतालिक सवाल करता है। इसीलिए जरूरत है कि वो जो सवालात है, उनके जो जवाबात है, उनसे मुतालिक जो मवाद है उसे महदूद न किया जाए, बल्कि इफ्शा किया जाए, सबके सामने लाया जाए और सबको उससे वाकिफियत कराई जाए। और इस शुबहात से मुतालिक जो किताबें हैं, एक तो इस्लाम और दौरे हाजिर के शुबहात व मुगालते, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की किताब है। इसी तरीके से इस्लाम पर बेजा एतराज़ात है। इसी तरीके से अभी मुफ्ती अबूबकर साहब ने तज़किरा किया अल इंतिबाहातुल मुफीदा फी इश्तिबाहातिल जदीदा या अन इश्तिबाहातिल जदीदा। वाकई ऐसी किताब है जिसके पढ़ने के नतीजे में अगर दर्क के साथ पढ़ लिया जाए, गहराई के साथ पढ़ लिया जाए, हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बातिल के जितने सवालात है उसका अक्सर हिस्सा गैर मुशाहद चीजों पर इत्मीनान और यकीन का है। हम कैसे माने कब्र की जिंदगी को, हम कैसे माने बरज़ख की जिंदगी को, हम कैसे माने पुलसिरात पर? हमने देखा नहीं है, मुशाहदा नहीं किया है, तो इनकी बुनियादें न देखी हुई चीजों पर एतराजात की है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 उसूल 7 उसूल ऐसे मुंजबित अंदाज में लिखे हैं और हिस्सी मिसालें उसके जेल में ऐसी जिक्र की है, उनके पढ़ लेने से शुबहात के जवाबात के देने में बहुत ज्यादा सहूलत हो जाती है। इसी तरीके से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की और एक किताब है इस्लाम और अक़लियात, और मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब की किताब है नए जहन के शुबहात और इस्लाम का मौक़िफ़, और एक किताब है मुफ्ती अबू बकर बिन मुस्तफ़ा पटनी साहब की। ढाबेल के ये उस्ताद हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के तलबा को काम दिया था पूरे अकाबिर की किताबों से सवालात के जमा करने का। चंद दिन पहले फहरिस्त असबाब आई थी सिर्फ शुबहात और जवाबात की, लेकिन चंद दिन के बाद उनके जवाबात जमा किए गए। यानी हमारे अकाबिर ने जिन जिन शुबहात का जवाब किया पूरों को जमा कर दिया गया। बड़ी कोशिश से उनके जवाबात भी दिए गए और अकली अंदाज में समझाने की भी कोशिश की गई। नए जमाने में आने वाली किताब है, जरूर मुताला करना चाहिए। और मौलाना इकबाल साहब टंकारवी दामत बरकातुहुम की किताब है मीडिया के एतराज़ात व जवाबात। उसके अलावा और एक फितना है
कादियानियत का आप जानते हैं, गांव के गांव, इलाके के इलाके, स्लम बस्तियां, कैसे ये लोग मेहनत करते हैं, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कैसी इनकी मेहनतें फैलती जा रही है। तारुफ ज्यादा जरूरी महसूस नहीं होता है, अलबत्ता इनसे मुतालिक किताबें अभी इदारतुस सिद्दीक वालों ने मजमुआ रसाइल रद्द कादियानियत 2 जिल्दों में ये किताब छापी है। इस किताब की खासियत ये है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, बद्र आलम मीरटी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की जो मेहनतें कादियानियत के खिलाफ थी, जो मवाद कादियानियत के खिलाफ था, इन 2 जिल्दों में सारों के मवाद को जमा कर दिया गया। इसी तरीके से किताब पढ़ी जा सकती है कादियानी मजहब का इल्मी मुहासबा प्रोफेसर इलियास बरनी साहब की। इसी तरीके से मोहम्मदिया पॉकेट बुक मौलाना अब्दुल्ला मेमार रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरीके से एहतिसाब कादियानियत, इस किताब को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा और एक फिरका है जिसे शकील बिन हनीफ कहा जाता है, जिसके असरात, जिसकी मेहनत, जिसके नताइज, एक मरतबा मेहनत करने के बाद अब तक तारीख में शायद ही कोई आदमी होगा जो इस फिरके में दाखिल होने के बाद वापस आया हो, तौबा किया हो, दोबारा वो जिस चौखट पर था उस चौखट पर आया हो। बहुत मुश्किल है उस आदमी को बताना जिसने तौबा की है। नेल्लूर के इलाके में देखा गया, ये लोग मेहनत करते हैं, खुलेआम मेहनत करते हैं। हमारे बाज बेशऊर किस्म के साथी जब उनका मुकाबला करने के लिए जाते हैं, मुकाबले के लिए बेशऊर होने की वजह से कोई दलाइल नहीं है, मारपीट के जरिए वापस लाना चाहते हैं, तो इस फिरके के मानने वाले उनका यह कहना है तुम जितना चाहे मार लो, अगर हम मर जाएंगे शहादत की मौत मिलेगी, उससे बड़ी कोई मौत नहीं है। यानी जहन साजी इतनी हद तक कर दी गई कि आपके पास लोग आएंगे, ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, तुम इनसे कह देना कि मक्की जिंदगी हम पर जिंदा हो रही है, मक्की जिंदगी हम पर जिंदा हो रही है, अगर हम मर भी जाए शहादत की मौत हमें मिलेगी। बाज़ाब्ता उन लोगों से बात सुनी गई जिन पर मेहनत हुई थी। उनसे मुताल्लिक किताबें फितने शकील बिन हनीफ की हकीकत, मौलाना अबरारुल हक शाकिर साहब मुस्तकिल हैदराबाद के हैं, मेहनत करते हैं, इलाका मैदानी आदमी हैं। परसों से रब्ता हुआ तब भी वो इसी मेहनत में सफर पर थे। इसी तरीके से शकील बिन हनीफ एक तारुफ और तज्जिया दारुल देवबंद के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जिम्मेदार सदर मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब दामद बरकातुहुम, उनकी ये किताब है, इसको भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से शकील बिन हनीफ और उसके मुत्तबईन का शरई हुक्म, ये किताब मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब की है, इनका भी इस किताब को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा भी दीगर किताबें हैं शकील बिन हनीफ, मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी संबली साहब की शकीलियत एक नई कादियानियत एक नया फितना, मौलाना इलियास नौमानी साहब की, ये चंद किताबें हैं। और भी किताबें हैं जिनका मुताला किया जा सकता है। उसके अलावा बाज वो फितने हैं जो मैदानी सतह पर नहीं है, मीडियाई सतह पर है। मसलन गोहर शाही का फितना है, गामिदियत का फितना है, इंजीनियर मिर्जा का फितना है। इन फितनों से मुतालिक भी आपको सुनाया जाता है। गोहर शाही का फितना बिदअत और खुराफात में मुब्तला तबका है, खुद को औलिया अल्लाह का आशिक जाहिर करता है। इस फितने का आसानी से शिकार लोग बनते चले जा रहे हैं। तसव्वुफ और रूहानियत के नाम पर इस फितने की जड़ें मजबूत की जा रही है, जो कि सरी गुमराही पर मबनी है। मुतासिरीन की तादाद का अंदाजा आप लाइव सुनने वालों से, सब्सक्राइबर्स पे से और लाइकर्स से लगा सकते हैं कि कई हजारों की तादाद में सुनने वालों की तादाद है, गोया कि वो मुतासिरीन हैं, इसीलिए सुन रहे हैं। इनसे मुतालिक, इस फितने से मुतालिक किताबें दौर जदीद का मुसैलमा कज़्ज़ाब गोहर शाही मौलाना सईद अहमद जलालपुरी साहब की किताब है, और फितने गोहर शाही मोहम्मद मतीन खालिद साहब की किताब है। गोहर शाही के अकायद और नजरियात मौलाना मोहम्मद तुफैल साहब की किताब है। इसके बाद अभी तस्किरा किया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना। ये शख्स अवामुन्नास, खास तौर पर 10वीं जमात, ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटीज के तलबा को अपने अंदाज में गुफ्तगू और उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कोशिशें करता रहता है ये शख्स। और सहाबा इकराम के बारे में, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर शुकूक, तनकीद, शुबहात और उनकी ज़ात पर तान करना और उनकी ज़ात को मौज़े तोहमत बनाना, ये सारी चीज़ें इस शख्स की
कोशिशें और इस शख्स का मैदान है, इनसे मुतालिक, इस शख्स के मुतालिक भी किताबें लिखी गई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अफकार व नज़रियात और तहरीफ़ात तक़ीउद्दीन अहमद साहब की किताब है। इसी तरीके से दूसरी किताब लिखी गई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा राफिजियत सुन्नियत के लुबादे में प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फैयाजुल हसन साहब की किताब है। इसी तरीके से जावेद अहमद गामिदी का फितना है, सब जानते हैं। वो लिबास नहीं है जो अकाबिर का हुआ करता है, वो हुलिया नहीं है जो असलाफ का हुआ करता था। बस असरी तबका उनसे मुतासिर होता चला जाता है, उनसे मुतालिब किताबें लिखी गई। गामिदियत क्या है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, और गामिदियत मजहब क्या है, प्रोफेसर मौलाना रफीक अहमद साहब। इसी तरीके से जावेद अहमद गामिदी और इनकार हदीस प्रोफेसर मौलाना रफीक अहमद साहब की। इसी तरीके से फिक्र गामिदी एक तहकीकी तज्जियाती मुताला डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब की। इसी तरीके से फितने गामिदियत एक तहकीकी व तनकीदी जायजा हाफिज सलाह यूसुफ साहब की। ये सब किताबें हैं और इन किताबों की कसरत बताती है फितने से ताक़ुब होना चाहिए और कितना संगीन और ख़तरनाक किस्म का फितना है। हमारे शहर हैदराबाद में फैयाजी फितना ये भी उभरता हुआ है, बढ़ता हुआ है। इलाज के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, नजरियात को बदला जा रहा है, लोग मुतासिर होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे रिसाले, फतावा और नजरियात को एक जा इस फितने से मुतल्लिक किया गया है। मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब का भी बयान है जिसको स्क्रीन पर आवेजा कर दिया गया है। उस बयान से भी इस्तेफादा किया जा सकता है इस शख्स के नजरियात को समझने और पढ़ने और उसकी तरतीब से मुताल्लिक। उसके बाद ये तो फिरके हैं जिनमें अभी तस्किरा बाकी है, बरेलवियत का, गैर मुकल्लिदियत का। इसके अलावा हमारी निगाहों में जो बड़ी मेहनत से लिखे गए मुहाजरात है दारुल देवबंद के असातिज़ा की तरफ से, चाहे वो रद्द ईसाइयत से मुतालिक हो, चाहे वो राफिजियत से मुतालिक हो, चाहे वो शीइयत से मुतालिक हो, चाहे वो गैर मुकल्लिदियत से मुतालिक हो, या इसके अलावा जितनी किताबें अकाबिर देवबंद की तरफ से लिखी गई हैं जरूर उनका मुताला करना चाहिए। ये तो वो फिरके हैं जिनका आखिर में तस्कीरा किया गया, वो 72 फिरकों में शरीक होंगे। फिरके नाजिया के वो हकदार या ये कि उसमें शामिल नहीं होंगे उनके नजरियात के इनहराफ की वजह से। लेकिन ये फिरके हमें हर गली में मिल जाते हैं, हर महल्ले में मिल जाते हैं, हर इलाके में मिल जाते हैं, हमारे सफ में भी मौजूद हैं, हमारी मस्जिद में भी मौजूद हैं। इन फिरकों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए और उनके साथ किन मसाइल पर हमारी बैठक हो सकती है, इत्तिहाद किन मौज़ूआत पर हो सकता है। याद रखना चाहिए इख्तिलाफ हर जमाने में रहा, सहाबा के जमाने में भी था, ताबईन के जमाने में भी था। हक के लिए हो, दलील के साथ हो, वो इख्तिलाफ बुरा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इख्तिलाफु उम्मती रहमतुन, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। मसला इख्तिलाफ का नहीं है, मसला असबियत का है। मसला इख्तिलाफ का नहीं है, मसला बर्तरी के साथ जीने का है। मसला इख्तिलाफ का नहीं है, मसला अनानियत का है। मसला इख्तिलाफी मौज़ूआत कम है, इत्तिहादी मौज़ूआत ज्यादा है। आप अकाबिर की जिंदगियों को पढ़िए, असलाफ की जिंदगियों को पढ़िए, वहां पर इख्तिलाफ के बावजूद मोहब्बतें थी, अपनाइयतें थी, कदरदानियां थी, मुलाकातें थी, सारी चीजें थी। इख्तिलाफ कोई दूरियां पैदा नहीं करता था, इख्तिलाफ कोई ऐसी दीवार नहीं थी कि चेहरा देखने के लिए तैयार ना हो। मैं वाकयात सुनाता हूँ, मुफ्ती अबू बकर साहब दाऊद बरकातुहुम ने वाकयात को सुनाया। यूनुस बिन अब्दुल आला, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। एक मसले में इख्तिलाफ हो गया, यूनुस बिन अब्दुल आला उठकर चले गए, घर पर चले गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात गुजर गई, ख्याल आया कि मेरा शागिर्द उठकर चला गया। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, यूनुस बिन अब्दुल आला ने अंदर से पूछा कौन है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मोहम्मद बिन इदरीस। यूनुस बिन अब्दुल आला कहते हैं कि मेरा जहन नहीं गया कि मेरे उस्ताद मोहतरम आए हैं। मैं बाहर निकला, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने दरवाजे पर देखा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ए यूनुस इज्तमाअतना मसाइल, कई मसाइल ने हमें जमा कर दिया था, एक मसला है जिसने हमें बिखेरा है। हम अलहदगी नहीं चाहते हैं, हम उस पुल को बाकी रखना चाहते हैं कि कभी वापस आने की नौबत आए तो पुल बाकी रहे, अपनाइयत मोहब्बत बाकी रहे। फिक़्ह हनफी की किताबें पढ़ाई जाती है, हिदाया को ले लीजिए, एक सफ़े में इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ है। कभी बेअदबी का वाक़या, कभी बदतमीजी का वाक़या, कभी उनके दरमियान मोहब्बतों के खात्मे का वाक़या, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिरका वारियत और जुज़ई मसाइल में
पड़ जाना यह कितना खतरनाक किस्म का होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जंग है, मुकाबला करना है, बैतुल मक़दिस की फतह है, जासूसी के लिए एक अपने आदमी को भेजा, वो ईसाइयों की सफ़ों में घुसा, जासूसी उसने की। आकर सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से सुनाता है, मैंने कौम का हाल देखा, नौजवान मस्त है शराब और नशे में, मैंने बूढ़ों का हाल देखा, उलमा रहबानियीन का मैंने हाल देखा। वो एक मसले में इख्तिलाफ में पड़े हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे मसलक के मुताबिक वो आसमान पर उठा लिए गए, उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें कत्ल कर दिया गया कि वो इंतकाल से पहले कौन सी रोटी खाए थे, जौ की रोटी थी या ये कि गेहूं की रोटी थी। जुज़ई मसले में उनका पढ़ना यह इस बात की दलील थी कि कौम बिखरने वाली है, कौम बिखरने वाली है। और भी मुख्तलिफ वाक़यात है जो बताते हैं कि उनके दरमियान इन छोटे छोटे मसाइल के बावजूद इत्तेहाद कैसे हुआ करता था। कभी हम कौमी मसाइल के लिए फुरूई मसाइल को तरजीह नहीं देंगे, सियासी मसाइल है, हसास मौजू है, इलेक्शन का जमाना है, तरजीही मौजू है, उस मौके पर फुरूई मसाइल की वजह से कोई जत्थाबंदी या कि दीवार खड़ी नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मुल्की मसाइल है हम सब जमा हो जाएंगे, जैसे कि वक्फ का मसला चल रहा है, अब यहाँ पर रफेदैन का मसला छेड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर नूर बशर का मसला छेड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर तो मसला अब जमा होने का है हमारे असलाफ की, हमारे आबा अजदाद की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसी तरीके से जब मसला आ जाता है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का, हम सब जमा हो जाएंगे। जैसे कि मौलाना कारी तय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इलाकों का सफर कर कर, सूबों का सफर कर कर, जिलों का सफर कर कर सबको जमा किया था मुंबई में पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कि अब हुकूमत एतराज कर रही है हमारे मसाइल पर, हमारी शरीयत पर, हम सबको जमा होना है, इज्तिमाइयत को बताना है ताकि एतराज बाकी ना रहे, कोई दखल वो दे ना सके। इत्तेहाद के बावजूद, इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद हो सकता है। ये थोड़ी सी मिसालें आपको सुनाई गई। उसके बाद असल मौजू का खुलासा ये है कि एतराज़ात की जब बात आती है या ये कि इस्लाम पर शुबहात की किताबों की जब बात आती है या फ़िरक़ों से मुतालिक जब बात आती है निसाब में शामिल करने की, उसे खारिजी समझा जाता है। सोचना चाहिए कि अगर फाजिलात को इल्म ना हो, एतराज़ात के जवाबात का फाजिलात के अंदर गहराई ना हो, शुबहात के जवाबात के सिलसिले में, फितनों के ताक़ुब के सिलसिले में कैसे वो मुकाबला कर सकते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तलबा से खिताब करते हुए फरमाते हैं, तुम्हें सिपाही बनना है, तुम्हें सरहदों की हिफाजत करना है, तुम सिपाही नहीं बन सकोगे। सिपाही जितना अधूरा होगा सरहद उतनी गैर महफूज होगी, सिपाही जितना चाको चौबंद होगा सरहद उतनी महफूज रहेगी। अगर निकलने वाला आलिम या निकल फारिग होने वाली फाजिला, अगर उनके अंदर इन चीज़ों का इल्म ना हो, सारी चीज़ों से वाकिफियत ना हो, हमने ये कहा नहू में पुख्तगी चाहिए, सर्फ में पुख्तगी चाहिए, हमने कहा ये खारिजे निसाब है, बाद में पढ़ा लिया जाएगा। कब उससे काबू में लाया जा सकता है? जब ये चबूतरे का मौजू है, जब हर एक के जहन में ये सवालात है, इसीलिए उन्हें तैयार करने की ज़रूरत है। जब ये कहा जाता है निसाब में दाखिल करना है या ये कि निसाब का हिस्सा बनाना है, ये सवाल किया जाता है कौन सी किताब निकाली जाए, कौन सी किताब निसाब से हज़फ की जाए। शरअ विक़ाया निकाली नहीं जा सकती, नूर इज़ा को हज़फ किया नहीं जा सकता। तरक्की है, तदरीज है, जिसके बाद फ़िक़्ह में गहराई आएगी, नई हिस्सा बनाया जा सकता है। अभी बयान किया जाएगा कैसे हिस्सा बनाया जा सकता है। जब तदरीस हो किताबुल हुदूद की, जब बुखारी पढ़ाई जा रही हो और उसमें जब बाब आए हुदूद का, किसास का, क्या उस मौके पर कत्ल की सजा इस्लाम में जो सुनाई जाती है उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है? जब बात आए इसी तरीके से अगर इन अबवाब गुजरते रहे, वहां पर अगर ऐसे अबवाब है जहां पर रज्म की सजा है, क्या वहां पर रज्म के सिलसिले में एतराज का दफा नहीं किया जा सकता है? किताब तलाक चल रही है, किताब खुला चल रही है, वहां पर हलाले के सिलसिले में जो एतराज किए जाते हैं क्या उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है? किताब सियर जब गुजारी जा रही है, इस्लाम पर जिहाद को लेकर, जिहाद का गलत तस्वुर पेश कर कर जो एतराज किया जाता है, जो सवालात किए जाते हैं, 24 आयतों को पेश नजर रखकर जो इस्लाम को बदनाम किया जाता है, क्या उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है? हौसला चाहिए, जज्बात चाहिए, इरादे चाहिए, जरूर गुजारे जा सकते हैं, काम हो सकता है, हो रहा है। ममालिक में और मुख्तलिफ मुल्कों में, इलाकों में, सूबों में, जिलों में लोगों ने शामिल किया। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने सुनाया
कि असहुसियर को निसाब में शामिल कर दिया गया, खारिजी तौर पर की ही क्यों ना हो, चूंकि सीरत से वाकिफियत नहीं हो रही है। ऐसे ही इन किताबों को शामिल किया जा सकता है। हिदाया फिक्र के लिए है, नहू की पुख्तगी के लिए, सर्फ की पुख्तगी के लिए। ये जो फितने हैं, ये जो फिरके हैं, शुबहात के जो जवाबात है, ये ईमान पर हमला आवर है, ये ईमान के सल्ब करने वाले हैं। ये फिरके नाजिया से निकालने वाले हैं। नहू से ज्यादा हसास मौजू है, सर्फ से ज्यादा हसास मौजू है, नस्लों का मसला है, अजीम मेराज है एक इंसान की। ईमान वाली मौत अगर उसे मिल जाती है, इसीलिए कैसे उसे शामिल किया जा सकता है? चंद तरीके आपको सुनाए गए। जब ऐसे अबवाब गुजर रहे हैं, उन पर उन एतराजात के जवाब दे दिए जा सकते हैं। ऐसे ही अंजुमन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अंजुमन में हम देते हैं इस्लाह से मुतालिक, मुआशरे की इस्लाह से मुतालिक, और दीगर अनावीन को देते हैं। वहां पर अनावीन दिए जाए, ये कह दिया जाए कि इस जुमेरात को अनावीन इस्लाम पर बेजा एतराजात में जो मौजूआत है उनको पढ़कर सुनाना है। शुबहात दे दिए जाए, इन 4 शुबहात के जवाब देना है, तो अंजुमन के अंदाज में भी उसे गुजारा जा सकता है। इसी तरीके से माहिरीन को बुलाकर, मुहाजिरीन दिलवाकर उन फितनों से वाकिफियत करवाई जा सकती है। मुहाजरा 1 घंटे का होता है। अगर वाकई तैयारी की जाती है और पेश किया जाता है, फितनों से वाकिफियत भी हो जाती है, शुबहात के जवाब भी हो जाते हैं। इसी तरीके से हौसले बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, मौजू से दिलचस्पी पैदा करने के लिए, तकाबुल पैदा करने के लिए मुसाबकात में इन अनावीन को तय किया जा सकता है। मुसाबकात में ला लेते हैं, हौसला बढ़ जाएगा, शिरकत के सब ख्वाहिशमंद हो जाएंगे। ऐसे भी इन मौजूआत को गुजारा जा सकता है। और वो किताबें जो खास किस्म की हो, जिसकी जरूरत इस जमाने में बहुत ज्यादा महसूस हो रही हो, उसे निसाब का हिस्सा बना लिया जाए तो जरूर फायदा होगा। उसकी वजह से मज़ामीन गुजर जाएंगे, जवाबात देने, मुकाबला करने, ताक़ुब करने, हसासियत पैदा हो जाएगी, और फिर मुकाबले के लिए कदम भी जमेंगे, मुकाबले के लिए आगे भी बढ़ेंगे, तहरीरात भी तैयार होगी। ये सब होगा अगर हम निसाब का हिस्सा, या ये कि जो मज़कूरा तरीके बताए गए, उन तरीकों से निसाब में उसको शामिल कर लिया जा सकता है। खुलासा यह है कि ये मौज़ूआत हसास है, मेहनत का मैदान है, किताबें लिखी हुई है, तवज्जो की जरूरत है, और मैदान में फाजिलात को भी इस तरफ मुतवज्जे करने की जरूरत है। चूंकि आया वो मजमा फाजिलात का भी है और जिम्मेदार खवातीन का भी है। अगर वो तवज्जो दे और मौजू को अहमियत दे और समझे, जरूर इसकी इफादियत है, और किसी न किसी तरीके से जरूर निसाब का हिस्सा उसे बनाया जा सकता है। अल्लाह मुहाजरे के दरमियान होने वाली कोताहियों को खत्म फरमाए, और जो कहा गया अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इल्म सही अमले कबूलियत वाले अमाल की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।